गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। और आपने के लिए एक नया सेशन हम लेकर आ चुके हैं बायोलॉजी के। तो आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर आप बायोलॉजी की किसी भी सब्जेक्ट में आप तैयारी कर रहे होंगे, तो बिल्कुल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये सेशंस आपके इंग्लिश में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और हिंदी के भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए हैं मैंने, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। Which of the following is not correctly matched? Options है father of plant anatomy, Andrew, term meristem, C. Nageli, apical cell theory, C. Nageli, हिस्टोजन concept, Andrew. सो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो करेक्टली मैच नहीं है, आप आंसर करना है। चलिए, और जी आपके जो क्वेश्चंस है वो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से लिए गए हैं, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और इसी के साथ हम यहाँ पे कुछ एक 60-70 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे प्लांट एनाटॉमी के। उसके बाद आपके नया टॉपिक आपका स्टार्ट किया जाएगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। हिस्टोजन कंसेप्ट एंड नगेली, यहाँ पर ये जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अ प्लांट टिश्यू व्हेन स्टेन्ड showed the presence of hemicellulose and pectin in cell wall of its cell. The tissue represents. Options है कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, xylem, मेरिस्टेम। क्वेश्चन नंबर 2। क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं तो। चलिए, a plant tissue when stained showed the presence of hemicellulose and pectin in the cell wall of its cells. The tissue represents what? The tissue represents collenchyma. ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट collenchyma is right. Next question number 3. Passage cells are thin walled cells found in. Options है endodermis of roots facilitating rapid transport of water from cortex to pericycle. Phloem elements that serve as entry points for substances for transport to other plant parts. Test of seeds to enable emergence of growing embryonic axis during seed germination. Central region of style through which the pollen tube grows towards the ovary. आंसर को, ऑप्शंस को पढ़िए आराम से और आंसर कीजिएगा। Passage cells are thin walled cells found in. Question number 3. Okay, the right answer is endodermis of root facilitating rapid transport of water from cortex to pericycle. Option first is correct. Next है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 4. मेरिस्टेम responsible for increase in girth or diameter is apical meristem, intercalary meristem, lateral meristem, none of this. क्वेश्चन नंबर 4, अगर आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गर्थ और डायमीटर इज। बायोलॉजी के बहुत ही फ्रेश और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कराए जा रहे हैं। नीट के एस्पिरेंट्स जितने भी नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कीजिए। And the right answer is lateral meristem. Lateral meristem. Option C is correct. Next, question number 5. Intercalary meristem is present at the base of internodes in grasses, leaves in pinus, nodes in mentha, all of this.
Enterocaridy meristem is present at the base of. Okay, the right answer is all of this. ठीक है, all of this is right. Option D is correct. Next question number 6. Which of the following statements is true? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 स्टेटमेंट है, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो आपको सेलेक्ट करना है. ऑप्शंस देखिए. Vessels are multicellular and with wide lumen. Tracheids are multicellular and with narrow lumen. Vessels are unicellular and with narrow lumen. Tracheids are unicellular and with wide lumen. ऑप्शन सारे आपको कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे, आप अच्छे से पढ़ लीजिए आराम से एंड समझ के आंसर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6. एंटर which of the following statement is true? So the right answer is vessels are multicellular and with wide lumen. Option first is true. ठीक. Next है question number 7. Lateral meristem is present in what? Options है vascular cambium, cork cambium, xylem and phloem, both A and B. फ्रेंड्स, आप क्लास को शेयर कीजिएगा. जितने भी नीट के एस्पिरेंट्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी, जस्ट अभी DSSB के भी फॉर्म्स आने वाले हैं, DSSB, ठीक है, उसके भी आप तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो. बायोलॉजी के हर एक टॉपिक पर यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं एक टॉपिक पर. अभी हमने आपको एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लगभग आपको 100+ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराए हैं. अभी भी उसकी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम सॉल्व करा ही रहे हैं. चलिए. लैटरल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट इन वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम. ऑप्शन ए एंड बी दोनों आपके राइट होंगे. ठीक है, ऑप्शन ए एंड बी सो दिया हुआ है ऑप्शन डी में. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. Quiescent center is found in root. The concept of quiescent center was proposed by. जो quiescent center जो है वो रूट में प्रेजेंट होता है, तो इस कंसेप्ट को किसने दिया था, किसके द्वारा ये प्रस्तावित किया गया, ये quiescent center वाला जो टॉपिक है, कंसेप्ट है. ऑप्शंस है क्लोविस इन मेज, Suchmit in rice, Nageli in oat, Buart in Arabidopsis. Quiescent center is found in root. The concept of quiescent center was proposed by. जहाँ पर आपके कुछ साइंटिस्ट के नाम है और किस चीज में उन्होंने इसको डिस्कवर किया वो भी यहां पर मेंशन किया हुआ है. आप आंसर करेंगे. क्वेसेंट सेंटर, चलिए, द राइट आंसर इज क्लोविस इन मेज. क्लोविस इन मेज, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9. अ कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ वेसल एलिमेंट्स एंड sieve tubes element is. Options है thick secondary walls, pores on lateral walls, presence of P protein, and enucleate condition. Enucleate condition, sorry. चलिए, क्वेश्चन है कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ वेसल एलिमेंट्स and sieve tube element is. Pores on lateral walls. Option B is correct. Pores on lateral walls. Next है आपका क्वेश्चन नंबर 10. In Eichhornia, parenchyma develops air spaces. Such parenchyma with air cavities is known as. Collenchyma,
क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। क्वेश्चन नंबर 10। अगर आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। क्वेश्चंस नोट करने के बहुत फायदे हैं फ्रेंड्स, इसको आप घर पर रिवीजन कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं फ्रेंड्स, ठीक है, और एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं, उठाए गए हैं सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी की बुक से। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। एरेनकाइमा, ठीक है, एयर स्पेसेस की बात कर रहा है। एयर स्पेसेस जहां पे एयर जाकर स्टोर होता है, तो बिल्कुल एरेनकाइमा ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11। स्क्लेरेनकाइमा इज थिक वॉल टिश्यू विच हैज depositions of lignin on their cell walls, suberin on their cell walls, pectin on their cell walls, cellulose on their cell walls. Question number 11. So the right answer is lignin on their cell walls. Option first is correct. Next, question number 12. In the sieved elements, which of the following is the most likely function of pea proteins? Options are deposition of callose on sieved plates, providing energy for active translocation, autolytic enzymes, sealing mechanism on bonding. अच्छे से पढ़ेंगे ऑप्शंस को और आंसर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 12। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सीलिंग मैकेनिज्म ऑन बॉन्डिंग, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सीलिंग मैकेनिज्म ऑन बॉन्डिंग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? ऑप्शन है हार्डनेस ऑफ सीड कोट इज ड्यू टू स्टोन सेल्स, स्टोन सेल्स आर प्रेजेंट इन एंडोकार्प ऑफ कोकोनट, हार्ड सीड कोट्स एंड फ्रूट पल्प, stone cells are not present in fruit pulp of pyrus, function of sclerites in is mechanical. Question number 13. क्लास के एंड में सभी कमेंट्स करके बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कितने आपके क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं उनको आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। सो द राइट आंसर इज स्टोन सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन फ्रूट पल्प ऑफ पायरस। ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट था और यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन। वेसल लेस एंजियोस्पर्म इज ऑब्लिक आर। ऑप्शंस है विंटेरा, टेट्रासेंड्रॉन, ट्रोकोडेंड्रॉन, ऑल ऑफ द अबव। वेसल लेस एंजियोस्पर्म, इनमें से कितने ऑप्शन या कौन सा ऑप्शन है जो वेसल लेस एंजियोस्पर्म्स के अंडर आता है? सो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑल ऑफ द अबोव, ये सारे ऑप्शन ही जो हैं वो वेसललेस एंजियोस्पर्म्स हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। इन अ वुडी डाइकोटिलेडोनस ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स विल मेनली कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी टिश्यूज? ऑप्शन है स्टेम एंड रूट, ऑल पार्ट्स, शूट टिप्स एंड रूट टिप्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड लीव्स। Question number 15. In a woody dicotyledonous tree, which of the following parts will mainly consist of primary tissues?
सो द करेक्ट आंसर इज शूट टिप्स एंड रूट टिप्स. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नोट कर लेंगे क्वेश्चंस को. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन एंजियोस्पर्मिंग प्लांट्स हैव वेसल्स? नेटम, वेलविक्सिया, एफेड्रा, all of this. Question number 16. Which of the following non-angiosperming plants have vessels? So यहाँ पर भी आपका जो ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा. सारे ऑप्शन ही नॉन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं जिनके पास वेसल्स हैं. ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन. कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट इन फ्लोएम ऑफ angiosperms and bryophytes, pteridophytes and gymnosperms, angiosperms and gymnosperms, bryophytes and angiosperms. Companion cells are absent in phloem of. चलिए, so the right answer is pteridophytes and gymnosperms. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है सेशन का. जनरली एपिडर्मिस is single layered, but in certain leaves multi-layered upper epidermis is present, such as Darum, Nerium, Ficus, Peperomia, all of this. क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन है. फ्रेंड्स, क्लास को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा. ठीक है, खासकर जितने भी नीट के एस्पिरेंट्स हैं, टीजीटी पीजीटी के एस्पिरेंट्स हैं, बिल्कुल आप लोग यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं. चलिए, सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस. ऑप्शन डी इज करेक्ट. सो सेशन यहीं पर समाप्त होता है. आप लोग बिल्कुल जुड़े रहिए हमारे साथ डेली ऐसे नए क्वेश्चंस के लिए. धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नए सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ. थैंक यू.